بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا لیکچر نیچر آف ہسٹری کے بارے میں ہے۔ نیچر کا مطلب ہے ساخت، ترکیب، قسم یا فطرت۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ہسٹری کی ساخت یا ترکیب کے بارے میں جانیں گے۔ ہسٹری از دی اسٹڈی آف مین۔ ہسٹری انسان کا مطالعہ ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ ہسٹری میں ہم انسانوں ہی کے بارے میں جانتے ہیں، انسانوں کے کارناموں کے بارے میں، ان کے مختلف کاموں کے بارے میں، جو کامیابیاں انسان نے حاصل کی ہیں ان کے بارے میں، یا انسانوں سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو بھی معاملات خرابی کی طرف گئے ہیں، ان سب کے بارے میں ہم ہسٹری ہی سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو ہسٹری کیا ہے؟ انسان کا مطالعہ ہے اور انسان کے کیے ہوئے کاموں کا مطالعہ ہے۔ It deals with man's struggle and achievements۔ ہسٹری کا تعلق انسان کی جد و جہد سے ہے۔ انسان نے جو بھی کوششیں کیں، جو بھی اس کی جد و جہد رہی ابتدا سے لے کر اب تک، ان سب کا احوال ہمیں ہسٹری ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ ابتدائی انسان نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو جد و جہد کی اور ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے انسان موجودہ ترقی یافتہ دور میں جو موجود ہے، تو یہ سب انسان کی مسلسل جد و جہد ہے، اور تاریخ سے ہمیں انسان کی جد و جہد کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ اینڈ اچیومنٹس، جد و جہد کے علاوہ تاریخ کا تعلق انسان کی کامیابیوں سے بھی ہے۔ تو انسان جو بھی کوشش کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں یا تو اسے کامیابی ملتی ہے یا ناکامی ملتی ہے۔ تو ہم ہسٹری کو جب پڑھتے ہیں، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں انسان کی شاندار کامیابیوں کے بارے میں جاننے کو ملتا ہے کہ انسان نے کس طرح غار کے دور سے ترقی کرتے ہوئے آج بے حد اہم مقام حاصل کر لیا ہے، اور اتنے ترقی یافتہ دور میں اتنی بہت سی ایجادات کے ساتھ انسان آج اس دنیا میں موجود ہے کہ اگر ابتدائی دور کیا، اگر 1000 سال پہلے کے لوگ بھی اس دنیا میں آ جائیں تو وہ اتنی ترقی کو دیکھ کر اور اتنی ایجادات کو دیکھ کر بالکل حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور ان کے لیے ترقی کے اس رفتار کو سمجھنا اور ان ایجادات کو سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو تاریخ ہمیں انسان کی جد و جہد اور اس کی کامیابیوں کے بارے میں ہمیں تاریخ سے معلوم ہوتا ہے۔ According to Carl L. Becker, history is the study of all human words and deeds۔ کارل ایل بیکر کے مطابق ہسٹری انسانوں کے الفاظ اور اعمال کا مطالعہ ہے، یعنی ہسٹری سے ہمیں انسانوں کی کہی ہوئی باتیں معلوم ہوتی ہیں، ان کے اقوال کے بارے میں پتہ چلتا ہے انسان نے کیا کچھ کہا۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم اکثر ہی پڑھتے ہیں کہ یہ قول ایک بہت ہی مشہور مفکر کا ہے، یا پھر اس رہنما نے اس نظریے کے بارے میں یہ کہا، یا یہ نظریہ جو ہے یہ اس اہم سیاستدان کا ہے۔ اور اس طرح ہم مختلف اہم شخصیات کے اقوال پڑھتے رہتے ہیں، اور جیسے ہم قائد اعظم کا بہت ہی مشہور جو قول ہے، کام کام اور بس کام، یہ ہم سب نے سن رکھا ہے۔
सुना तो हम सब ने है, अब अमल कितना किया है ये एक अलग कहानी है। अच्छा, इसी तरह बहुत सी कहावतें हमें याद होती हैं मशहूर शख्सियात की, तो बहुत से अक़वाल हमें याद होते हैं। तो ये सब जो है मशहूर लोगों की, अजीम लोगों की, जिन्होंने बहुत अहम कंट्रीब्यूशन उनकी होती है किसी भी शोबे में, तो उनकी ये बातें जो हैं हमारे लिए बेहद अहमियत रखती हैं और हमारी हमारी रहनुमाई करती हैं। तो इसलिए हम इन अक़वाल को याद रखते हैं, क्योंकि ये तवील तजर्बात का निचोड़ होते हैं। तो हिस्ट्री इंसानों के अल्फाज का मुतालिया है, यानी जो कुछ इंसानों ने कहा, और वो जो कहा है वो उसके पीछे एक तवील तजर्बा है, ठीक है। उसी के नतीजे में वो चीज़ कही जाती है, और फिर ये चीज़ जो है वो आने वाले इंसानों के लिए बेहद कारआमद और फ़ायदामंद होती है। इसके अलावा ये देखिए कि हिस्ट्री इंसान के अफ़ाल या अमाल का भी मुतालिया है, यानी एक बात तो इंसान कहता है और दूसरा ये है वो करके दिखाता है। जो कुछ इंसान ने करके दिखाया है, जो कारनामे भी इंसान ने सरअंजाम दिए हैं, तो वो सब जो है वो भी हिस्ट्री में शामिल हैं, हिस्ट्री का हिस्सा हैं। और इंसान के किए हुए कामों को, उसके सरअंजाम दिए हुए कारनामों को का मुताला जो है वो असल में तारीख़ है। तो कार्ल एल बेकर के मुताबिक इंसानों के अल्फाज और अमाल जो हैं इनका मुतालिया तारीख़ कहलाता है। हिस्ट्री इज़ कंसर्न्ड विद 4 क्वेश्चंस। हिस्ट्री का ताल्लुक 4 सवालों के साथ है। तो वो 4 सवाल हम देखते हैं वो कौन से हैं। अकॉर्डिंग टू A.F. पोलार्ड, A.F. पोलार्ड के मुताबिक देयर इज़ द क्वेश्चन व्हेन, एंड द क्वेश्चन वेयर, द क्वेश्चन हाउ एंड द क्वेश्चन व्हाई। A.F. पोलार्ड ने इन 4 सवालों की निशानदेही की है जिनका ताल्लुक हिस्ट्री के साथ है, और वो 4 सवाल कौन से हैं। पहला सवाल है व्हेन, कब, और दूसरा सवाल है वेयर, कहाँ, तीसरा सवाल है हाउ, कैसे, और चौथा सवाल है व्हाई, क्यों। द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेट्स टू टाइम। पहले सवाल का ताल्लुक वक्त के साथ है, ज़माने के साथ है, ठीक है। तो पहला जो सवाल है वो क्या है, व्हेन, कब। तो ये कब मतलब कोई वाक़या कब रुनुमा हुआ, या फिर ये है कि ये कोई हादसा हुआ है तो वो कब ज़हूर पज़ीर हुआ, कब वक़ू पज़ीर हुआ, या कोई इनकलाब आया है तो वो कब आया है, कोई जंग हुई है तो वो कब हुई। यानी कोई भी वाक़या हुआ, कोई भी काम हुआ, तो वो कब हुआ, किस दौर में हुआ, किस अहद में हुआ, किस ज़माने में हुआ। तो पहले सवाल का ताल्लुक टाइम से है। व्हेन ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, टाइम को, वक्त को। एंड द सेकंड कंसर्न्स विद द प्लेस, और दूसरा सवाल जो है वो है वेयर, कहाँ। इसका ताल्लुक प्लेस से है, जगह से, कि अगर कोई वाक़या हुआ है तो वो कहाँ हुआ है, किस जगह हुआ है। कोई सानिया रुनुमा हुआ है तो वो किस जगह रुनुमा हुआ। कोई जंग हुई तो वो कहाँ लड़ी गई। कोई हादसा हुआ तो वो कहाँ वक़ू पज़ीर हुआ। तो जगह का ताल्लुक जो है वो दूसरे सवाल वेयर से है। यानी वेयर हमें बताता है, ये दूसरा सवाल हमें बताता है किसी काम के या किसी वाक़ये के वक़ू पज़ीर होने की जगह के बारे में हमें बताता है, उसकी निशानदही करता है कि वो काम कहाँ हुआ, वो वाक़या
कहाँ रूनुमा हुआ. The third and the fourth questions are concerned to inquire out the matter. Dear students, जो तीसरा और चौथा सवाल है, तीसरा सवाल है how और चौथा सवाल है why. how कैसे, why क्यों. तो इन दोनों सवालों का ताल्लुक है मामले की तहकीक से, मामले की तफ्तीश से. यानी जो काम हुआ है वो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है. यानी हम तहकीक कर रहे हैं, हम तफ्तीश कर रहे हैं, हम उस वाक़े के बारे में जान रहे हैं कि वो कैसे हुआ और क्यों हुआ, वो हादसा कैसे हुआ और क्यों हुआ, वो जंग कैसे हुई और क्यों हुई, वो इनकलाब कैसे आया और क्यों आया. यानी कोई भी वाक़या, कोई भी काम अगर हुआ है तो वो कैसे हुआ है और क्यों हुआ है. ये है उस मामले को जानने के बारे में उसकी तहकीक या तफ्तीश करना. तो इसको हम दोबारा देख लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेट्स टू टाइम एंड द सेकंड कंसर्न्स विद द प्लेस. द थर्ड एंड द फोर्थ क्वेश्चंस आर कंसर्न्ड टू इंक्वायर आउट द मैटर. तो ये हमें पता चल गए हैं 4 सवाल, और इन चारों सवालों के बारे में हमने जान लिया है कि किस तरह हम मामले की गहराई तक पहुंच सकते हैं. हम किसी भी मामले को, हम किसी भी वाक़ये को किस तरह सही तरीके से जान सकते हैं और हक़ाइक़ तक पहुंच सकते हैं कि वो वाक़या कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ. तो इससे हम हकीकत जान लेंगे. The inquiry does not stop at the mere description of the past, but it goes further and explains the reasons behind an event. ये तहकीक या ये तफ्तीश जो किसी मामले के बारे में हो रही है, ये सिर्फ माजी के तफसील बयान करने तक ये मामला नहीं रुक जाता. तहकीक या तफ्तीश माजी की तफसील, महज तफसील बयान करने तक रुक नहीं जाती, बट इट गोज़ फर्दर, बल्कि ये तहकीक और तफ्तीश मज़ीद आगे बढ़ती है. एंड एक्सप्लेन्स द रीज़न्स, और ये वजाहत करती है उन असबाब की या वजूहात की, बिहाइंड एन इवेंट, जो किसी वाक़े के पीछे कार फरमा होते हैं. तो हम किसी भी वाक़ये के बारे में जो तहकीक और तफ्तीश कर रहे होते हैं तो उसका मकसद सिर्फ उसकी तफसील बयान करना नहीं होता, बल्कि उस वाक़ये के पीछे जो असबाब और वजूहात होती हैं, जो मुहर्रिकात होते हैं, उनकी वजाहत करना भी होता है. और इस तरह हम हकीकत तक पहुंच जाते हैं, हम सच्चाई को जान लेते हैं. हक़ाइक़ तक रसाई जो मुमकिन है वो इस तहकीक और तफ्तीश के ज़रिए ही होती है, जिससे हम उस मामले को पूरी तरह समझ लेते हैं. टुडे हिस्ट्री इज़ कंसीडर्ड टू हैव 4 dimensions, namely people, places, time and ideas. आज हिस्ट्री को तस्लीम किया जाता है कि इसकी 4 जहतें या सिमतें हैं, और वो कौन सी हैं? वो हैं पीपल लोग, प्लेसेस जगह, टाइम ज़माना, अहद वक्त, एंड आइडियाज़ और नज़रियात. तो आज तारीख़ के बारे में हम ये तस्लीम करते हैं कि इसकी 4 जहतें या सिमतें हैं, जिनमें लोग, जगह, वक्त और नज़रियात शामिल हैं. तो आज की तारीख़ जो है वो लोगों, जगहों, वक्त और नज़रियात को मद्देनज़र रखते हुए लिखी जाती है, और इन्हीं अहम डायमेंशंस पर मबनी होती है.